welcome to my channel Science Learning Gateway. I hope you all are doing good. So in this video today we are going to discuss about the 8th day of Navratri. Means which goddess is worshipped on the 8th day of Navratri. As you know that today is Mahaashtami. So on this day which goddess is worshipped, that we will discuss in this video. So आज हम लोग जानते हैं कि अष्टमी के दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है. What is the story about Mahaashtami? That all things we'll learn today in this video. So let's start with our video. Durga Puja celebrations are in full swing in India. This year, people are engaging in merriment in a safe manner due to the novel coronavirus. On the 8th day of Navratri, goddess Mahagauri is worshipped. The day is celebrated as Durga Ashtami or Mahaashtami. Worshipping goddess Mahagauri, the avatar of goddess Durga, is considered auspicious. She is the eighth manifestation of the goddess Durga and amongst the Navadurgas. The 10-armed goddess riding the lion is highly regarded. The even and weapons of goddess Durga are worshipped while reciting mantras in a ritual known as Ashta Puja. Durga Puja begins from the 6th day, that is Mahashashti, and ends with Mahadashmi, the 10th day. The 8th day of Navratri is considered as the most important day. This time around, there is confusion among the people regarding the dates of Durga Ashtami, Mahanavami, and Dussehra. The dates based on the Hindu Panchang do not work on the same way as the date in the English calendar, that is 24-hour pattern. These dates can be less than 24 hours and sometimes even longer. Many times, these tithis fall on the same date, leading to the two fasts or festivals falling on the same day. So, Durga Puja is celebrated across the country with the much fanfare. Bengalis consider this festival one of the biggest in their community. On Mahaashtami, people worship the incarnation of Chamunda, goddess Shakti. As per Dirka Panchan, Durga Puja on Mahaashtami begins with Manshana and Shodara Puja, which is very much similar to Mahasaptami Puja, except Parna Pratishtha, which is done only on the Mahasaptami. भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है. यह देश त्योहारों का देश है और ये सभी त्यौहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज भी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है. इनमें से एक त्यौहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं. अहि अष्टमी का पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं. अहि अष्टमी से संबंधित प्रचलित दो कथाएं निम्नलिखित हैं. तो चलिए जानते हैं हमारी अष्टमी की कथा. दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी. एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई. वहां पर उसने गलती से एक पशु के शाश्वत को अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु हो गई. इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई. एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वो माता अहोई अष्टमी का आराधना करे. पशु के शाश्वत की सोते हुए हत्या से पश्चाताप के लिए उस औरत ने शाश्वत का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी. उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिरी में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए. अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जाने कि यह व्रत किस प्रकार सबके लिए उपकारी है. यह व्रत हर औरत जिनके संतान है वो सभी औरतें ये व्रत करती हैं. माता महागौरी की पूजा का नवरात्र के दिन में करना अधिक श्रेष्ठकर माना गया है. नवरात्र में माता की पूजा करने से पाप से मुक्ति मिलती है, मन में विचारों की शुद्धता आती है, हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है. माता अपने भक्तों को बल और बुद्धि में वृद्धि करती हैं. तो अष्टमी के दिन हम माँ गौरी की पूजा करते हैं. माँ गौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी. तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ महागौरी को स्वीकार कर लिया. कठोर तपस्या के कारण माता महागौरी का शरीर काला हो गया और उस पर धूल मिट्टी की परतें जम गईं. तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया. भगवान शिव ने स्नान करने के से माता का शरीर स्वर्ण के समान दमकने लगा. तभी से माता का नाम महागौरी पड़ गया. माँ महागौरी वृषभ पर सवार होती हैं. माता महागौरी को अत्यंत सौम्य देवी के रूप में जाना जाता है. यह माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति हैं. माता की 4 भुजाएं हैं. यह वृषभ की सवारी करती हैं. इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है. ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है. तो ये थी माता महागौरी की एक छोटी सी कहानी. आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड अ लॉट. इन West Bengal today in
Calcutta, peoples over there, all the Bengali people, they used to celebrate this festival with a great fun, and all of them used to keep fast also on the अष्टमी डे. बंगाल में सभी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं. उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है महाअष्टमी, क्योंकि आज सबसे इम्पॉर्टेंट डे है पूरे नवरात्र का. सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी अष्टमी. आई wish that Ma Durga will bless you all with her blessings. Thank you for watching my channel Science Learning Gateway. I hope you all enjoyed this. If you like this video, then please click on the like button and share it with your friends also. Thank you for watching.